سامعین، آج آپ کو میں ایک افسانہ سناتی ہوں۔ رات کو بڑے زور کا اندھڑ چلا۔ سیکریٹریٹ کے لان میں جامن کا ایک پیڑ گر پڑا۔ صبح جب مالی نے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ پیڑ کے نیچے ایک آدمی دبا پڑا ہے۔ مالی دوڑا دوڑا چپراسی کے پاس گیا، چپراسی دوڑا دوڑا کلرک کے پاس گیا اور کلرک دوڑا دوڑا سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا۔ سپرنٹینڈنٹ دوڑا دوڑا باہر لان میں آیا۔ منٹوں میں ہی گرے ہوئے پیڑ کے نیچے دبے آدمی کے ارد گرد ایک مجمع اکٹھا ہو گیا۔ بیچارہ جامن کا پیڑ کتنا پھلدار تھا، ایک کلرک بولا۔ اس کی جامن کتنی رسیلی ہوتی تھی، دوسرا کلرک بولا۔ میں پھلوں کے موسم میں جھولی بھر کے لے جاتا تھا، میرے بچے اس کی جامنیں کتنی خوشی سے کھاتے تھے، تیسرا کلرک یہ کہتے ہوئے رونے جیسا ہوا۔ مگر یہ آدمی؟ مالی نے پیڑ کے نیچے دبے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ آدمی۔ سپرنٹینڈنٹ سوچ میں پڑ گیا۔ پتا نہیں زندہ ہے کہ مر گیا؟ ایک چپراسی نے پوچھا۔ مر گیا ہوگا، اتنا بھاری تنا جس کی پیٹھ پر گرے وہ بھلا کیسے بچ سکتا ہے؟ دوسرا چپراسی بولا۔ نہیں، میں زندہ ہوں، دبے ہوئے آدمی نے بامشکل کرہاتے ہوئے کہا۔ زندہ ہے؟ ایک کلرک نے حیرت سے پوچھا۔ پیڑ کو ہٹا کر اسے نکال لینا چاہیے، مالی نے مشورہ دیا۔ مشکل معلوم ہوتا ہے، ایک کاہل اور موٹا چپراسی بولا۔ پیڑ کا تنا بہت بھاری ہے اور وزنی بھی۔ کیا مشکل ہے؟ مالی بولا۔ اگر سپرنٹینڈنٹ صاحب حکم دیں تو ابھی 15-20 مالی، چپراسی اور کلرک زور لگا کے اس پیڑ کے نیچے دبے آدمی کو نکال سکتے ہیں۔ مالی ٹھیک کہتا ہے۔ بہت سے کلرک ایک ساتھ بول پڑے۔ تو لگاؤ زور، ہم تیار ہیں۔ ایک دم بہت سے لوگ پیڑ کو کاٹنے پر تیار ہو گئے۔ ٹھہرو، سپرنٹینڈنٹ بولا، میں انڈر سیکرٹری سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ انڈر سیکرٹری کے پاس گیا، انڈر سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری کے پاس گیا، ڈپٹی سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری کے پاس گیا، جوائنٹ سیکرٹری چیف سیکرٹری کے پاس گیا، اور پھر ان تینوں کے بیچ کچھ بات چیت ہوئی۔ ادھر سے ادھر فائل چلتی رہی اور آدھا دن گزر گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد دبے ہوئے آدمی کے ارد گرد بہت بھیڑ جمع ہو گئی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ منچلے کلرکوں نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ وہ حکومت کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر پیڑ کو خود ہٹانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں سپرنٹینڈنٹ فائل لیے بھاگا بھاگا آیا۔ بولا، ہم لوگ خود سے اس پیڑ کو یہاں سے نہیں ہٹا سکتے، ہم لوگ وانجیہ وبھاگ کے کرمچاری ہیں اور یہ پیڑ کا معاملہ ہے، یہ کرشی وبھاگ کے تحت آتا ہے، اس لیے میں اس فائل کو ارجنٹ مارک کر کے کرشی وبھاگ کو بھیج رہا ہوں، وہاں سے جواب آتے ہی اس کو ہٹوا دیا جائے گا۔ دوسرے دن کرشی وبھاگ سے جواب آیا کہ پیڑ ہٹانے کی ذمہ داری تو وانجیہ وبھاگ کی ہی ہے۔ یہ جواب پڑھ کر وانجیہ وبھاگ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے فوراً لکھا کہ پیڑوں کو ہٹوانے کا یا نہ ہٹوانے کا ذمہ دار صرف اور صرف کرشی وبھاگ ہے، اس میں وانجیہ وبھاگ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے دن بھی فائل چلتی رہی۔ شام ہو گئی۔ شام کو جواب آیا، ہم اس معاملے کو ہارٹی کلچر وبھاگ کے سپرد کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پھلدار پیڑ کا معاملہ ہے اور کرشی وبھاگ صرف اناج اور کھیتی باڑی کے معاملوں میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جامن کا پیڑ ایک پھلدار پیڑ ہے، اس لیے پیڑ ہارٹی کلچر وبھاگ کے ادھیکار شیتر میں آتا ہے۔ رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کو دال بھات کھلایا۔ حالانکہ لان کے چاروں طرف پولیس کا پہرا تھا کہ کہیں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر پیڑ کو خود سے ہٹوانے کی کوشش نہ کریں، مگر ایک پولیس کانسٹیبل کو رحم آ گیا اور اس نے مالی کو دبے ہوئے آدمی کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دی۔ مالی نے دبے ہوئے آدمی سے کہا، تمہاری فائل چل رہی ہے، امید ہے کہ کل تک فیصلہ ہو جائے گا۔ دبا ہوا آدمی کچھ نہ بولا۔ مالی نے پیڑ کے تنے کو غور سے دیکھ کر کہا، اچھا ہے، تنا تمہارے کولہے پر گرا، اگر کمر پر گرتا تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ دبا ہوا آدمی پھر بھی کچھ نہ بولا۔ مالی نے پھر کہا، تمہارا یہاں کوئی وارث ہو تو مجھے اس کا اتا پتا بتا دو، میں اسے خبر دینے کی کوشش کروں گا۔ دبے ہوئے آدمی نے بڑی مشکل سے کہا، میں لاوارث ہوں۔ مالی افسوس ظاہر کرتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔
तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब आया, काफी आलोचना भी थी। उसने हार्टिकल्चर विभाग का सेक्रेटरी साहित्यिक मिजाज का आदमी मालूम होता था। उसने लिखा, हैरत है, इस समय जब पेड़ उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने की सलाह दे रहे हैं, वे भी एक फलदार पेड़ को, वो भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए, एक मंचले ने कहा। अगर पेड़ नहीं काटा तो इस आदमी को निकालना मुश्किल है। अगर इस आदमी को बचाना है तो इस पेड़ को काटना होगा, वरना इस आदमी को धड़ से काट कर अलग करके निकालना होगा। दबे हुए आदमी ने एतराज जताते हुए कहा, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। एक क्लर्क बोला, ये भी सही बात है। आदमी को काटने का नायाब तरीका पेश करने वाले उस शख्स ने एक दलील पेश की। अब जानते नहीं है, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ की जगह से उस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसी दिन विभाग के सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को जांच के लिए मौके पर भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोल कर उसकी सेहत देखकर खून का दबाव, सांस की गति, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन हो तो सकता है, मगर कामयाब होगा कि नहीं यह मैं नहीं कह सकता। आदमी मर भी सकता है, लिहाजा ये सुझाव रद्द किया जाए। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए बोला, अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ते से बोला, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई और हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ता से सर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में ये बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग बड़ी तादाद में शायर को देखने के लिए आने लगे और ये खबर शहर में फैल गई। शाम तक मोहल्ले के शायर जमा हो गए। सेक्रेटेरिएट के लॉन में शायरों का मजमुआ हो गया। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजलें सुनाने लगे, कुछ अपनी गजलों पे सलाह मशवरा मांगने लगे। जब पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सब कमेटी ने फैसला किया कि लिहाजा फाइल का ताल्लुक न कृषि विभाग से है, न हार्टिकल्चर विभाग से है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ संस्कृति विभाग से है। तो अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई कि वे जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करे और इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलवाई जाए। फाइल संस्कृति विभाग के अलग अलग सेक्शन से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। बेचारा सचिव उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? जी हाँ। क्या तखल्लुस रखते हो? अवस। अवस? सचिव जोर से चीखा। क्या तुम वही हो जिसका मजमुए कलाम अक्स के फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने सर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सचिव ने फिर पूछा। नहीं, दबे हुए आदमी ने कहा। हैरत है, सचिव जोर से चीखा। इतना बड़ा शायर, अवस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, ये कैसी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है। शायर ने कहा, गुमनामी के अंधेरे में नहीं साहब, एक पेड़ के नीचे दबा हुआ हूँ। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सचिव फौरन बोला और जाकर विभाग को रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भागा भागा शायर के पास आया और बोला,
मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपने साहित्य समिति का सदस्य चुन लिया है। ये लो ऑर्डर की कॉपी। मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने करहाते हुए कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से उसका दर्द मालूम हो रहा था। सचिव ने कहा, ये हम नहीं कर सकते। जो हम कर सकते थे हमने कर दिया। अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिला सकते हैं। अगर तुम चाहो तो आवेदन कर दो। हमारा विभाग सिर्फ संस्कृति से ताल्लुक रखता है। आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। हालांकि दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वह किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। कल सुबह तक किसी न किसी तरह उसे जिंदा रहना था। दूसरे दिन जब वन विभाग के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से हुक्म है कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब ये पेड़ अगर काटा गया तो इस बात का पूरा अंदेशा है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क ने गुस्से से बोला। दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने कहा। और यह भी तो समझ लीजिए कि पिटोनिया सरकार हमारी सरकार को कितनी मदद देती है। क्या हम इनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी की कुर्बानी नहीं दे सकते? शायर को मर जाना चाहिए। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया। प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वो जो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 4 बजे सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल को लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही उसने खुशी से फाइल को लहराते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस मामले की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम मुसीबत से छुटकारा पालोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुपरिटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा। मगर शायर का हाथ सर्द था, आंखों की पुतलियां बेजान थीं और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी।